Hello everyone, welcome back to my channel. So good morning, good afternoon, good evening, at any time you're watching the video. Today we are going to start unit 1 from statistics part. The chapter name is Intro to Economics and Statistics. That's our first unit from stats book. So according to 2020 and 21, in our syllabus these are the following concepts which we have to do. Children, this unit number 1 carry 13 marks. This first unit is for, we can't predict ना कि 4 marks की आने वाली है, 3 की आने वाली है, but yes, unit 1 and 2 both carry 13 marks. But हमें इतना पता है कि जो first unit है वहाँ से 3 या 4 marks तक का आता है. So let's start. In unit 1 children, these are the following contents: meaning of economics, about statistics, scope, functions and importance of stats. So these are the concepts we have to do according to the new revised syllabus for 2020 and 21. So let me start with the basic concept. First of all, what do you mean by economics? Economics है क्या, हम क्यों पढ़ रहे हैं? Children, economics is a subject matter that focuses on the rational management of scarce resources and their alternative uses so that both motives can be maximized. Repeat, it is a subject matter that focuses on the rational management of scarce resources and their alternative uses so that both motives can be maximized. अभी rational management क्या है, scarce resources, alternative uses, which motives can be maximized, that we have to study children. Now what do you mean by rational management of scarce resources? सबसे पहले rational management क्या है? In our economy abundantly resources are available. हमारी इकोनॉमी के अंदर जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो abundant वे में अवेलेबल हैं, बट डे बाई डे डिमांड्स इंक्रीजेज एंड सच द यूजेज ऑफ रिसोर्सेज, उनका यूज़ भी बढ़ रहा है जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है रिसोर्सेज का. दैट्स वाई द स्कार्सिटी अराइजेज, इसलिए उन रिसोर्सेज की कमी हो गई है. चिल्ड्रन, स्कार्सिटी इज द रूट ऑफ ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. Moreover, all the resources have their alternative uses. हम हर रिसोर्स को अल्टरनेटिव यूज़ में डाल सकते हैं. Resources in economics children refers to factors and non-factor inputs which are used to take some output. किस लिए हम इनको यूज़ करते हैं? आउटपुट के लिए. एक तरह से इनपुट है जो हमें आउटपुट देगा. सो फैक्टर इनपुट्स आर, कौन कौन से फैक्टर इनपुट्स हैं हमारे? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड entrepreneurship. These are the 4 following factor inputs. And non-factor inputs are raw material, power supply, transportation, diesel, etc. All these factors can be used at different places. For example, land is a fixed factor which can be used for industrialization, can be plotted a school building, hospital, centers like tuition centers, agriculture purposes, etc. So it shows that the factor having its alternative uses and with alternative choices also. Clear? उनके alternative uses हैं और हमारे पास alternative choices भी हैं कि हम क्या लेना चाहते हैं. So it's difficult to overcome all the choices, taste and preferences. Children, due to alternative uses of the factor, it arises the problem of choice. किसकी वजह से arise होती है? Alternative uses की वजह से हमारे सामने problem of choice arise होती है. और इन दोनों की वजह से ड्यू टू अल्टरनेटिव यूजेस एंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इट बिकम्स आर इकोनॉमिक प्रॉब्लम. लाइकवाइज ऑल द फैक्टर्स हैविंग इट्स अल्टरनेटिव यूजेस. नाउ द क्वेश्चन इज अबाउट मोटिव. आवर इकोनॉमी इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी वेयर फ्यू एंटरप्राइजेस आर रन बाय द गवर्नमेंट हु वर्क्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी. गवर्नमेंट को क्या चाहिए? उनका मोटिव है सोसाइटी का वेलफेयर करना. And some of the enterprises are run by the private enterprises which are running their enterprises for profit motive. Clear? So these are the 2 motives, profit maximization and welfare of the society. तो हमारी इकोनॉमी दो मोटिव से काम कर रही है, या तो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए या प्रॉफिट मोटिव के लिए. जो हमारी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं वो प्रॉफिट के लिए कर रही हैं. हमारे जो गवर्नमेंट एंटरप्राइज है उनका मोटिव क्या है? सोसाइटी का वेलफेयर करना. Now some important terms related to economics children. The first one is a consumer. Consumer कौन है? He is a person who always demands from the market on the basis of his income
टू फुलफिल द डिज़ायर्स ऑफ हिज फैमिली। क्लियर? कंज्यूमर कौन है? वो इंसान जो हमेशा मार्केट से कुछ ना कुछ डिमांड करता रहता है। इट डिपेंड्स अपॉन हिज इनकम कि वो अपनी फैमिली के डिज़ायर्स को कैसे पूरा करता है। सेकेंड पार्टी है हमारी इकोनॉमिक्स के अंदर सेलर। सेलर वो पर्सन है जो गुड्स को मार्केट में सेल करता है प्रॉफिट के मोटिव से। देन हमारा प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन है? वो पर्सन who will produce goods to satisfy the demand of the consumer by converting raw material into some finished goods, जो कच्चे माल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है और लोगों की डिमांड्स को पूरा करने में लगा हुआ है, उनकी कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन के लिए लगा हुआ है, उन्हें सेटिस्फाई करने में लगा हुआ है। सो दैट इज़ अ प्रोड्यूसर। नॉट सर्विस होल्डर। सर्विस होल्डर कौन है? वन हु इज़ इन जॉब वर्किंग अंडर सम अदर पर्सन एंड गेटिंग वेजेस सैलरीज फॉर देयर वर्क। वो पर्सन जो किसी के अंडर काम कर रहा है, उसके बदलों से वेजेस या सैलरीज मिल रही है, इज अ सर्विस होल्डर। अब सर्विस प्रोवाइडर कौन है? वन हु प्रोवाइड सम काइंड ऑफ वर्क, और यू कैन से जॉब, और यू कैन से सर्विसेज टू अदर वंस, और उसके बदले वो सैलरी देता है, वेजेस देता है उनके काम के लिए जो वो एक दूसरे से लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, स्कूल प्रिंसिपल एट्सेट्रा, दे आर द सर्विस प्रोवाइडर। अब स्कूल जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं वो टीचर्स को जॉब दे रहे हैं, सो दे आर द सर्विस प्रोवाइडर। एंड हु इज द सर्विस होल्डर? टीचर्स। डॉक्टर्स कौन है? सर्विस प्रोवाइडर। जो हमारे नर्सिस हैं वो कौन होंगी? सर्विस होल्डर्स। बड़े बड़े एडवोकेट्स हैं, बड़े बड़े लॉयर्स हैं, वो सर्विस प्रोवाइडर हैं। जो उनके नीचे छोटे मोटे क्लाइंट्स काम कर रहे हैं, छोटे मोटे उनके अंडर जो एडवोकेट्स काम कर रहे हैं, छोटे मोटे लॉयर्स काम कर रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे? सर्विस होल्डर। नेक्स्ट इज कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या है? गुड्स विच आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स विद हायर वैल्यू एंड यूज फॉर सेवरल ईयर्स। वो चीज़ें जिनको हम सालों साल तक यूज़ करते हैं, जो लंबे टाइम तक यूज़ की जाती हैं, कॉस्टली भी होती हैं, दोज गुड्स आर कंसिडर्ड एज कैपिटल गुड्स। क्लियर अप टू दिस? नेक्स्ट इज इकोनॉमिक्स इज ऑफन डिस्कस्ड इन 3 पार्ट्स। इकोनॉमिक्स को 3 पार्ट्स में डिस्कस किया गया बेटा। कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कंजप्शन क्या है? इट रेफर्स टू विच इज डन बाय द जनरल कंज्यूमर्स टू सेटिस्फाई देयर वांट्स एंड डिमांड्स बाय कंज्यूमिंग वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। व्हाट इज प्रोडक्शन? इट मीन्स वेयर रॉ मटेरियल कन्वर्टेड इनटू सम फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। थर्ड component है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। इट रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम generated in the form of revenue will be given to the factors of production, but in which form? In the form of rent to land, wages to labor, interest to capital, and entrepreneurship will get profit by combining all above the 3 factors: land, labor and capital. So on which basis further demand or consumption will arise, due to which further production will get done. Automatically बेटा कंजप्शन होगी तभी प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कर पाएगा, प्रोडक्शन होगी तो इनकम जनरेट होगी, तभी वो इनकम जो है डिस्ट्रीब्यूट होगी फैक्टर्स के बीच में। उसके बेसिस पे फिर से पता चलेगा कि डिमांड कितनी होने वाली है, फिर कितना प्रोडक्शन होने वाला है। तो ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो हमारी इकोनॉमिक्स ऑफनली इन तीनों से जुड़ी रहती है, इन तीनों से ही डिस्कस की जाती है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। What do you mean by statistics, children? It refers to the data and the methods of collecting data. ये एक तरह से एक डाटा ही है जो हमें रॉ फॉर्म में अवेलेबल होता है। हम उसे सॉर्ट आउट करते हैं, फिर देखते हैं कि हमें किस फॉर्म में चाहिए। अब स्टैट्स क्या? एक डाटा, और जो डाटा है वो हमारा हम किस फॉर्म में चाहते हैं? क्वांटिटेटिव फॉर्म में। In general sense, children, we can say that stats refer to the data and the methods of collecting data. But stats can be defined on the basis of plural and singular sense. 2 senses हैं हमारी stats को जो define करती हैं. The first is plural, second one is singular. So let me define one by one. The first one is plural sense. Plural sense के according stats क्या है बेटा? It refers to any quantitative data which is collected in a systematic manner with some objective. क्या मैंने इसमें बोला? क्वांटिटेटिव डाटा। सबसे पहली बात, जब हम स्टैटिस्टिकल डाटा क्रिएट करते हैं तो हम सिर्फ क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन विल बी इग्नोर्ड टोटली। पॉइंट टू बी नोटेड चिल्ड्रन, वी विल इंक्लूड ओनली क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन while collecting data and ignore qualitative information.
Quantitative means which can be measured in numbers like height, weight, income, expenditure. All these things can be measured in number forms, while qualitative means which get measured in features like good, bad, worst, beautiful, honesty, intelligent, etc. Clear this which is collected in systematic manner. Systematic वे में कलेक्ट किया जाता है, सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा को कलेक्ट किया जाता है और पहले से कुछ ऑब्जेक्टिव प्री डिटरमाइंड होता है, उससे रिलेटेड ही डाटा हम कलेक्ट करते हैं. पहले से कलेक्ट नहीं करेंगे, पहले हमें ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है. सपोज मुझे क्लास का डाटा कलेक्ट करना है तो मैं पहले से अपना ऑब्जेक्टिव बताऊंगी कि मैं चाहती हूँ कि मेरी क्लास का जो रिजल्ट कैसा है इन ऑल द सब्जेक्ट. सो आई वांट द डाटा फ्रॉम ऑल द रिस्पेक्टिव टीचर्स about accounts, economics, BA history, English, physical, fine arts, maths, for all the subject. Afterward I can make the result. So that is my objective. Systematic way में होगा, numerically data लिया जाएगा, intelligent, bad, worst, इन features में हम result को determine नहीं करेंगे. Next is singular sense. Now according to the singular sense, what do you mean by statistics? Statistics क्या है? It refers to the collection, organization, presentation, analysis and interpretation of data. That is a definition of in singular sense. चलो अब हम वन बाय वन इनको डिफाइन करते हैं. सबसे पहला हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा, हमने डेफिनेशन की. सबसे पहला पार्ट है हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा. नेम से ही समझ में आ रहा है कि डाटा को कलेक्ट करना. वेयर इन्फॉर्मेशन विल बी कलेक्टेड रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, यूजलेस को हम लीव करते हैं. Second is organization of data. It means classifying the data in quantitative और qualitative form. ठीक है, हम डाटा को क्या करते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, उसे क्वालिटेटिव को अलग कर देते हैं, क्वांटिटेटिव को अलग करते हैं. अब हमें देखना है हमें क्या चाहिए. नाउ थर्ड वन इज प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. अब डाटा को प्रेजेंट कैसे करना है. चलो हमने अगर क्वांटिटेटिव डाटा हमने सेलेक्ट कर लिया क्योंकि हमने कहा हम क्वांटिटेटिव लेते हैं. अब उस क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन को हम प्रेजेंट कैसे करें. After organization, data will be presented in the form of table. या तो हम उसे टेबल फॉर्म में शो करें, या हम उसे डायग्रामेटिकली शो करें, या हम उसे ग्राफ फॉर्म में शो करें. ठीक है, या हम उसे टैबलर फॉर्म में शो करें, डायग्रामेटिक या ग्राफिकल फॉर्म में उसे शो करें, सो दैट इट कैन बी अंडरस्टैंड ईजिली एंड इट बिकम यूजफुल, ताकि दूसरा पर्सन उसे ईजिली समझ सके और वो यूजफुल भी हो. ठीक है. नाउ द फोर्थ वन इज एनालिसिस ऑफ डाटा. अब डाटा को एनालाइज करना है. सो द नेक्स्ट स्टेप इज डाटा गेट एनालाइज्ड थ्रू वेरियस मेथड्स. विच आर द मेथड्स लाइक एवरेजेस, dispersion, correlation, index number, and all these are the chapter names which you will study in your statistics part. That means statistics. In short, we can say stats. Okay, the fifth point is interpretation of data. अब डाटा को इंटरप्रेट करना है. सामने वाले को डाटा चाहिए तो किस फॉर्म में दे. अगर उसे कंपैरिजन करना है डाटा का तो उसे प्रॉपर फॉर्म में चाहिए. इन द फॉर्म ऑफ रेशियोज एंड परसेंटेज डाटा विल बी इंटरप्रेटेड टू द रिलेटेड पर्सन who seeks for that information. जिसे वो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको जिस तरीके से चाहिए, रेशोज में चाहिए, परसेंटेज में चाहिए, उस तरीके से डाटा को हम इंटरप्रेट करेंगे एट लास्ट. क्लियर. सो दीज आर द 5 पॉइंट्स. कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा एट लास्ट. नाउ मूव टू द फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. अब स्टैट्स के फंक्शंस क्या हैं. फर्स्ट पॉइंट इज in the short form I have written, I will explain you. Only quantitative information. Children, it gives only quantitative information which can be expressed and understand easily. Second point is data in definite form. Data in definite form means children, it present complex data in a very simple form. जो मुश्किल सा एक डिफ़िकल्ट फॉर्म में और बड़ा कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ हमारी डाटा अवेलेबल होता है तो ये स्टैट्स क्या करता है, उसे एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है. जैसे कि हमने टेबल्स का यूज़ किया, डायग्राम्स का, ग्राफ्स का यूज़ किया, इससे क्या हुआ, डाटा हमारा इजीली अंडरस्टैंडेबल हो गया. सो इट प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स डाटा इन अ वेरी सिंपल फॉर्म लाइक यूजिंग टेबल्स, diagrams and graphs so that it become easy to understand. Third point is expertise required. Let me explain. It enhance the vision of the individual because to interpret the data, high expert knowledge and experience required. You can maintain your notes, children. Whatever I'm explaining to you, I repeat the point. It enhance the vision of the individual because to interpret the data, high expert knowledge and
एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। कोई भी पर्सन इसको इजीली नहीं कर सकता, उसके लिए पहले एक्सपर्टीज़म होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अभी कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कैसे है चिल्ड्रन? इट शोज cause and effect relationship between the data. For example, if the demand falls in the market, अगर डिमांड कम होगी किसी प्रोडक्ट की या बढ़ रही है और rises, then what will be the reason? और you can say cause. तो हम ये पता लगाता है कि डिमांड बढ़ी या घटी तो उसके बढ़ने का क्या कारण है, ठीक है, क्या रीज़न है, क्या कॉज है। फॉर एग्जाम्पल डिमांड बढ़ी, मार्केट के अंदर डिमांड राइज हुई, अब उसका कुछ भी कारण हो सकता है प्रोडक्ट का प्राइस कम कर दिया गया प्रोड्यूसर से, हो सकता है कि वो प्रोडक्ट मार्केट में कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, या कुछ ऑफर दिए गए हैं साथ में, बाय वन गेट वन फ्री लाइक ऑफर्स आर प्रोवाइडेड इन द मार्केट। सो बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं कि क्या हुआ, किसकी वजह से डिमांड बढ़ी। तो ये पता लगाना ही स्टैट्स का काम है, कोज एंड इफेक्ट। अगर ये कारण हुआ तो उसका क्या इफेक्ट आएगा मार्केट के ऊपर। लास्ट पॉइंट इज फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। स्टैटिस्टिकल डाटा फैसिलिटेट्स formulation of policies like subsidies and taxation policies, children, which are maintained by the government, which are made by the government. So these statistical data are very helpful while formulation of such policies. जब भी हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड कोई पॉलिसीज़ बनानी होती हैं, टैक्सेशन पॉलिसीज़ बनानी होती हैं, तो पहले हमें एक डाटा चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि हर साल टैक्स स्लैब बनाया जाता है एवरी ईयर, तो उससे पहले एक स्टैटिस्टिकल डाटा उन्हें चाहिए होता है जिसके बेसिस पर वो टैक्स स्लैब प्लॉट करते हैं। अब वो टैक्स स्लैब बनाने के लिए उन्हें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, अब वो क्या चाहिए, एवरेज इनकम कितनी है, हमारी कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, उसके बेसिस पे वो डाटा बनाएंगे और देन दे विल टेक द डिसीजन अबाउट द टैक्स स्लैब्स। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स चिल्ड्रन इन आवर इकोनॉमिक्स। नाउ लेट्स मूव टू द स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब इकोनॉमिक्स की स्टैट्स की स्कोप क्या है हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर। Stats in planning, stats in business and management, stats in industry, stats in economics. One by one हम डिस्कस करते हैं। Now stats in planning. Whenever we plan something like taxation policies, employment policies, revenue generation schemes, budgetary, there is a need of statistical data, children. And कैसा डाटा चाहिए होता है, पास्ट ईयर्स का। वी नीड स्टैटिस्टिकल डाटा ऑफ द पास्ट ईयर्स ऑन विच बेसिस वी विल मेक द प्लान्स, सो विच इज़ मेड अवेलेबल थ्रू ओनली स्टैटिस्टिक्स। सेकेंड पॉइंट, स्टैट्स इन बिजनेस एंड मैनेजमेंट। चिल्ड्रन, इन एनी बिजनेस फॉर डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट एंड कंट्रोल, statistical data required must to manage the things properly and wisely. हमें क्या चाहिए होता है, स्टैटिस्टिकल डाटा। कोई भी बिजनेस हो उसे मैनेज करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए, चाहे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, मार्केटिंग का हो, इन्वेस्टमेंट का हो, सभी को क्या चाहिए, स्टैटिस्टिकल डाटा चाहिए ताकि डिसीजंस वाइजली और प्रॉपरली लिए जा सके, चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज किया जा सके। थर्ड वन इज स्टैट्स इन इंडस्ट्री। चिल्ड्रन, इन इंडस्ट्रीज टू इट्स इम्पॉर्टेंस कैन नेवर बी नेग्लेक्टेड। हर जगह इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। इन इंडस्ट्रीज स्टैटिस्टिकल डाटा आर रिक्वायर्ड टू मेक क्वालिटी कंट्रोल चार्ट्स एंड टू मेक इंस्पेक्शन प्लान्स फॉर टाइमली चेक ऑन द प्रोडक्शन। हमें चाहिए होता है, हम टाइमली चेक करते हैं कि इंस्पेक्शन की जाती है इंडस्ट्रीज़ के अंदर कि प्रोडक्शन प्रॉपरली हो रही है, नहीं हो रही, कुछ गड़बड़ तो नहीं की जा रही। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें स्टैटिस्टिकल डाटा चाहिए होता है ताकि हम पहले से जो हमारी प्री डिटरमाइंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं और जो प्रोडक्शन की जा रही है उसके साथ कंपेयर करें और टाइमली एक्शन लिया जा सके। लेट मी रिपीट दिस पॉइंट, लिसन केयरफुली। इन इंडस्ट्री टू इट्स इंपॉर्टेंस कैन नेवर बी नेग्लेक्टेड। In industries, statistical data are required to make quality control charts and to make inspection plans for timely check on the production, to compare the predetermined quality standards जो हमने पहले से quality standard maintain करके रखे हैं, क्या उसके अकॉर्डिंग हमारी कंट्री इंडस्ट्री में प्रोडक्शन हो रही है या नहीं हो रही, ये चेक करना हमारा काम है। सो विद द प्रोडक्शन फॉर टाइमली एक्शन, ताकि हम टाइमली एक्शन ले सकें और नेक्स्ट टाइम कोई प्रॉब्लम क्रिएशन ना हो। लास्ट पॉइंट इज स्टैट्स इन इकोनॉमिक्स। In economics, statistical data and techniques play an important role, children, in different ways, in different areas in economics. Those techniques we will study in the coming chapters. So let's move to the next topic. Importance of stats. This is the last topic of this chapter, children. Importance of stats. Limitations we are not doing.
सो इम्पॉर्टेंस क्या है हमारी स्टैट्स के अंदर? द फर्स्ट पॉइंट इज, इन शॉर्ट आई हैव रिटन एंड लेट मी एक्सप्लेन टू यू, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. On the basis of statistical data, an economist can easily understand the cause behind the economic problem, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल समझाया डिमांड वाला, and can easily find the solution. हम solution भी easily निकाल लेते हैं, and can formulate policies related to it. Policies means children measures, solutions. I repeat this point. On the basis of statistical data, an economist can easily understand the cause behind the economic problem and can easily find the solution and can formulate policies related to it. Policies means measures or solutions. Next point, working out cause and effect relationship. अभी समझाया मैंने आपको. The same point, let me repeat. It works on cause and effect relationship. By this we can easily verify if the person arise, if the problem arise, what was the cause and how it affects. For example, to understand the relationship between price and demand, प्राइस एंड डिमांड का रिलेशन देखते हैं. डाटा रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर विल बी कलेक्टेड. हम पिछले साल का डाटा उठाएंगे और इस साल का डाटा उठाएंगे कि प्राइस बढ़े, कितने बढ़े, तो उसका क्या इफेक्ट आ रहा है, डिमांड बढ़ रही है या घट रही है. सो एनालाइज्ड एंड देन इट्स रिजल्ट विल बी सर्च्ड और फाइंड इट आउट. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज. Children, statistical data helps an economist in the formulation of economic theories. When an economist wants to find the relationship between two variables, he collects the necessary data related to two variables and then do the comparison, which in return becomes a theory. जब भी इकोनॉमिस्ट को कुछ रिलेशनशिप उसे ये पता लगाना है, इकोनॉमिस्ट क्या कर रहा है, फॉर्मुलेशन कर रहा है इकोनॉमिक थ्योरी का, तो वो क्या करेगा, कोई भी दो वेरिएबल उठाएगा और उसका कंपैरिजन करेगा. उसके बेसिस पे ही एक थ्योरी फॉर्मुलेट की जा सकती है. फॉर एग्जांपल, relationship between wages and labor is based on certain things and then compared, which formulates economic theory. So if more wages will be given, labor works more, and if less wages will be given, labor works less. So that is a comparison. You can say construction of economic theories. Now next point is economic forecasting. Economic forecasting refers to the future prediction. So statistical data also helps children in economic forecasting while formulating policies or plans. Next, second last point is formulation of policies. It helps in the formulating of economic policies. For example, अभी समझाया मैंने आपको टैक्स स्लैब वाला. टैक्स स्लैब is announced by the income tax department. कौन अनाउंस करता है? Income tax department अनाउंस करते हैं, on the basis of which income and expenditure of the public. So that is formulation of policies. लास्ट पॉइंट इज प्रेजेंटिंग फैक्ट्स इन अ डेफिनेट फॉर्म, ताकि हमारा डाटा इजी हो जाए, समझ में आए. लाइक साइंस वर्क्स ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड आई रिपीट, लाइक साइंस वर्क्स ऑन फैक्ट्स एंड फिगर आउट द थिंग्स एक्सक्लूसिव विदाउट स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन. क्लियर? लाइक साइंस वर्क्स ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड फाइंड आउट द थिंग्स likewise exclusively without statistical information. Economic facts are vague and indefinite. झूठे हैं, वो झूठे तथ्य होंगे, हम पे विश्वास नहीं कर पाएंगे. हमें पहले स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें हाथ में चाहिए ताकि हम पे विश्वास कर सकें. एंड टू अवॉइड कन्फ्यूजन्स इट नीड्स प्रूफ टू गिव एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन. आप अकाउंट्स में पढ़ते हो, जब आप जर्नल एंट्रीज करते हो, आप उसमें पढ़ते आ रहे हो अब तक कि हमें पहले प्रूफ चाहिए, उसके बेसिस पे ही डिसीजंस ले सकते हैं. Condensing elaborate data in a concise form. Children, to the various statistical tools and techniques, lengthy data can be converted. One extra point I am explaining, just listen carefully. Condensing elaborate data in a concise form. You can write or not, it's your choice, but in extra one point more I am explaining to you. Through the various statistical tools and techniques, lengthy data can be converted or summarized in a concise form, which can be understood easily. So those techniques are mean, median, mode. For example, it would be impossible to remember the income of all the residents of our country. However, per capita income could be remembered with ease, which will be found on estimation basis. So children, take a review on all the points of importance again. Understanding economic problems, working out cause and effect relationship, construction of economic theories, economic forecasting, formulation of policies,
presenting facts in a definite form, and one more point I explained to you, that is condensing elaborate data in a concise form. No need, these points are sufficient for you. I hope this chapter is clear to you children, and if still there is any query arise, you can ask personally. Thank you. Have a nice day ahead. Blessings to all.